Hello students, so today we are going to start our last and the most modified part of the plant, that is the angiosperm. Yes, so the angiosperm, as the name indicate, angio means enclosed and sperma means seed. Means here the seeds are enclosed. Yes, they are not naked, they are enclosed. Yes, so the seeds which is produced from the ovules, they are enclosed in फ्रूट. यस, यहाँ पे आपको सीड्स जो है वो फ्रूट के अंदर मिलेगा, ये बाहर नहीं मिलेंगे. यस, सो इट इज द एंजियोस्पर्म. इट इज द एडवांस ग्रुप ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट. यस, विच वी आर गोइंग टू सी. जो हम अभी अपने आजू बाजू प्लांट देखते हैं, दे आर द modified or the advanced group of the plant. Yes, in the in this the plants in these plants the seeds are enclosed within the fruits, that is the ovary. Yes, it is highly evolved part of highly evolved plant. yes, जो हमने देखा, वी हैव स्टडी, हमने थैलोफाइटा की बात की, वी हैव डिस्कस अबाउट ब्रायोफाइटा, वी हैव डिस्कस अबाउट द टेरिडोफाइटा. yes, where the vascular system first appear, from that we have seen कि हमने जिम्नोस्पर्म्स की बात की. नाउ द एंजियोस्पर्म विच इज द मॉडिफाइड पार्ट, मॉडिफाइड प्लांट. यस, जो आज हम अपने आजू बाजू में प्लांट्स देखते हैं, दे आर द एंजियोस्पर्म्स. यस, दे आर द वाइड वेराइटी, वो बहुत ज़्यादा वाइड वेराइटी में हमारे आजू बाजू में फैले हुए हैं. they have differ in their size, they differ in their habitat. So in the size, if we talk about the Wolffia is the smallest angiosperm, which is of about 1 mm in size, whereas the eucalyptus is the longest in the sense कि वो बड़ा है, it is about the 100 meters. whereas अगर हम width की बात करें या girth की बात करें, जो चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं, तो so the banyan tree is the example where the having the width up to the kilometers. Yes, so these are the examples where the angiosperms can differ in their size, as the Wolffia is the smallest, eucalyptus is the longest, whereas the banana is widest in the girth, वो सबसे चौड़ा है. Yes, ड्यूरिंग इफ वी टॉक अबाउट द हैबिटेट, अगर हम हैबिटेट की बात करते हैं, तो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट विच इज़ वी आर फाउंड इन द टेरेस्ट्रियल लैंड. सो उनमें से अगर कुछ सम आर टेरेस्ट्रियल, सम आर एक्वेटिक. यस, some are aquatic, some are xerophytes. Xerophytes means they can live in वो कम वाटर में भी रह सकते हैं. yes, like cactus. yes, so they are the xerophytes. Then epiphytes are the examples, they are the plants which will grow on the, which are the जो दूसरे होस्ट पे डिपेंड होते हैं, दे आर फाउंड ऑन द टॉल ट्री या प्लांट के ऊपर आपको देखने मिलेंगे. जो प्लांट्स देखने मिलते हैं, दैट यू कॉल्ड एज द epiphytes. देन नेक्स्ट इज द ephemeral. Ephemeral are the plants which you find in the desert for whenever there is a whenever there is a shower of वाटर, और कभी वहाँ पे थोड़ी बारिश हुई है, अगर वो थोड़े ड्यूरेशन के लिए अगर वो जो प्लांट्स ग्रो होते हैं इन द डेजर्ट, दैट यू कॉल्ड एज ए एफिमेरल. yes, some of the plants, they have the characteristics that they grow or they parasites on the other plant, like the Cuscuta plant. So they are totally depending upon the host plant, so they are called as the parasitic plant. So there are different way or different habitat where these angiosperms or the plants can be seen. Yes, now they also have the property that they are autotrophs, they are preparing their own food. yes, whereas if we talk about the plant, अगर हम बात करते हैं, so the plant have leaves. these are the modified plants में आप जो देखते हैं इस तरह से, अगर आपको स्टैम्प, अगर आप देखते हो स्टैम्प में, दिस इज, यहाँ से आपको एक लीव आती हुई दिखे या एक और इस तरह से लीफ आती हुई दिख रही है अगर, सो दिस इज यू कॉल्ड एज द नोड. दिस इज द नोड, दिस इज द नोड. ये
अलग अलग यहाँ पे आपको क्या दिखेंगे, नोड दिखेंगे, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस नोड इज द इंटर नोड। यस, सो यहाँ पे आप देखेंगे आपको लीव्स दिखाई देंगी। यस, लीव्स दिखाई देंगी, प्रॉपर रूट सिस्टम दिखाई देगा, स्टेम्स दिखाई देंगे, लीव्स दिखाई देंगी, एंड फ्लावर। द फ्लावर इज द रिप्रोड्यूसिंग पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज गोइंग टू रिप्रोड्यूस। यस, सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि द एंजियोस्पर्म दे आर फुल्ली डेवलप्ड। यस, एंड इन दिस एंजियोस्पर्म व्हाट यू सी कि देर इज sporophytic generation is more dominant. Yes, the sporophytic generation means their spores, sporophytic means they are producing spores. Yes, जैसे अब हमने दूसरे इससे भी कंपेयर किया, अगर जो हमने थैलोफाइटा में देखा था, दे आर टोटली in water, whereas in bryophyta they required water for their fertilization, whereas in the pteridophyta the स्पोरोफाइट्स की हमने बात की थी। ये स्पोरोफाइट्स जो था वो डिपेंडेंट था गमीटोफाइट्स पे। यस, बट इन द जिम्नोस्पर्म की अगर हम बात करते हैं तो दे आर, इनमें स्पोरोफाइट्स दे आर इंडिपेंडेंट, वेरेज इन द एंजियोस्पर्म ऑल्सो इट इज इंडिपेंडेंट। So here the angiosperm shows the alteration in generation in which the sporophytes are dominant over the gametophytes. Yes, and how the gametophytes and sporophyte we will see in the next video, whereas we discuss about the life cycle. जब हम life cycle की बात करेंगे तब हम उसमें और डिटेल में बात करेंगे. Yes, so first if we see the diagram of this flower in detail, the flower is the modified stem. This is the modified stem. Yes, the flower is the modified stem. In this flower, this part is called as the thalamus, whereas from this एक जो आपको इस तरह से स्ट्रक्चर निकलता हुआ दिख रहा है, that you called as the sepals or you called as the calyx, whereas जो आपको अलग अलग कलर के रंगे बिरंगे फ्लावर्स दिखते हैं, दैट जो उसमें पत्तियां होती है, दैट यू कॉल्ड एज द पेटल्स और कॉल्ड एज द corolla. Yes, then there is a male part that is which containing the anther, they called as the androecium. They called as the androecium, whereas the middle part or the female part of the flower, which is at the center, that contains the ovary, it called as the gymnosperm. Yes, this called as the जिम्नोस्पर्म। अगर हम ये फ्लावर की बात करते हैं तो दिस इज ऑल्सो अ मॉडिफाइड स्टेम। इफ वी, हम उसको अगर स्ट्रेच करते हैं, अगर हम इसको स्ट्रेच करते हैं तो व्हाट यू सी कि आपको जो स्टेम पे द थैलेमस, फ्रॉम दिस थैलेमस one of the node will produce this sepals, another will produce the petals or called as the corolla, or next node it produce the androecium, that is the male part, and the center point or the ovary जहाँ से produce हो रही है, that is at the center, it is the gymnosperm. Yes, so sorry, gynoecium, it is called as the gynoecium. So here अगर हम देखते हैं कि जो फ्लावर है it is a modified stem, अगर हम उसको stretch करते हैं तो this कि एक एक नोड से एक एक चीज यहाँ आपको दिखाई दे रही है। इफ वी, अगर हम उसको दबाते हैं और जब उसको देखते हैं तो व्हाट यू सी द दिस ये हमें फ्लावर दिखाई देता है, एंड यू कॉल्ड दैट फ्लावर एज अ मॉडिफाइड स्टेम। जो फ्लावर है इट इज द मॉडिफाइड स्टेम हुई है। यस, जो स्टेम्स थी वो क्या हो गई है, मॉडिफाइड हो गई है। अगर हम फ्लावर का स्ट्रक्चर की भी अगर बात करते हैं, इफ यू फाइंड ए स्टेम और यहाँ हर एक नोड से आपको लीफ दिखाई दे रही है, सो दिस लीफ इज ऑल्सो अ मॉडिफाइड लीफ, एंड लाइक वाइज हियर ऑल्सो दिस इज अ फ्लावर, दिस इज ऑल्सो अ मॉडिफाइड स्टेम। यस, सो अब यहाँ पे अगर हम देखें, सो इन दिस इज द मॉडिफाइड, ये क्या दिख रहा है आपको, मॉडिफाइड androecium. This is the modified androecium or the male gamete. This is the male gamete. So the male gamete is produced from the micro mother cell, microspore mother cell. So जो male gamete है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, they are produced from the microspore mother cell, जहाँ से वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। Yes, and if
ये अगर जो लीफ है, जो स्टेम्प है, ये नोट से जो स्टेम्प निकल रही है, सो जो स्टेम्प को हमने नाम दिया है दैट इज द एंड्रोशियम, एंड दिस एंड्रोशियम, जो एंड्रोशियम है दैट इज द मेल गैमेट, एंड दिस मेल गैमेट इज कमिंग फ्रॉम दिस माइक्रोस्पोर मदर सेल से आ रहा है, जो माइक्रोस्पोर्स हमें मिल रहा है। सो इन लास्ट जो हमारा जो गमिट है दैट इज द माइक्रोस्पोर्स, दैट वी ऑल्सो कॉल्ड, उसको हम क्या बोल सकते हैं, वी कॉल्ड एज द मॉडिफाइड माइक्रोस्पोरोफिल्स। हम उनको क्या बोल सकते हैं, मॉडिफाइड माइक्रोस्पोरोफिल्स, बिकॉज दे आर फॉर्म्ड, वो कहाँ से बन रहे हैं, बिकॉज दे आर फॉर्म फ्रॉम दिस मॉडिफाइड स्टेम से मिल रहा है हमें। सो जो स्पोर्स मिल रहे हैं, जो माइक्रोस्पोर्स मिल रहे हैं, दैट वी कॉल्ड एज द मॉडिफाइड माइक्रोस्पोरोफिल्स। वहीं अगर हम यहाँ पे जिम्नोस्पर्म्स की, सॉरी, गाइनोशियम की अगर हम बात कर रहे हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द गाइनोशियम विच इज द फीमेल पार्ट, सो इट इज the microspores which is formed from the microsporangia, that is the ovule. Microsporangia से ovule से हमें क्या मिल रहा है, we got the megaspores, सॉरी अगर मैंने आपको माइक्रो कहा होगा, द फीमेल पार्ट इज द ओव्यूल, और यू कॉल्ड एज द मेगास्पोरेंजिया और द मेगास्पोरेंजियोफोर। यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, वी गॉट द मेगास्पोर्स, यस, जिस दैट मेगास्पोर यू ऑल, ये इसको हम और क्या बोल सकते हैं, मॉडिफाइड मेगास्पोर्स, यस। सो यहाँ पे आपको जो फ्लावर देखने मिल रहा है, दैट फ्लावर इज द मॉडिफिकेशन ऑफ or the combination of the modified microsporophylls and modified megasporophylls, yes। so अगर हम यहाँ पे full structure of flower की अगर बात करते हैं, so the whole structure of the flower, you see कि they are, ये पूरा क्या है, it is containing the spores, yes। so this whole structure you called as the sporophytes, it called as the sporophytes। भी जैसे हमने बोला कि एंजियोस्पर्म में क्या डोमिनेंट रहता है, इट इज द स्पोरोफिटिक जो जनरेशन है, इट इज मोर डोमिनेंट, yes, and it is independent of the gametophytes, yes। so in this whole जो plant है that is the spore producing plant, because the flower is also the combination of the spores and the microspores, yes। so here this sporophytes are the dominant stage, yes। गमीटोफाइट्स के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे जब लाइफ साइकिल के बारे में हम स्टार्ट करेंगे, यस। सो इन दिस की ऑल द प्लांट्स, जो पूरा प्लांट्स हमको दिखाई दे रहा है, इट इज द स्पोरोफिटिक, यस। सो सी हाउ द बुक में कैसा इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। Angiosperms are the most advanced group of flowering plant, and in this plant the seeds are enclosed within the fruits, yes, that is the ovary। जो फ्रूट है आपको वो कैसा मिलेगा, इट इज वो आपको ओवरी या फ्रूट के अंदर में मिलेगा, वो आपको ऐसे ही देखने नहीं मिलेगा। सो इट कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आइज, या हम उसको ऐसे ही देख नहीं सकते हैं जब तक हम उसको फोड़ेंगे नहीं, yes। so in this the plants, the seeds are enclosed within the fruits, that is the ovary।